नमस्कार। मैं सुमित गर्ग एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। एज वी ऑल नो, financial year is going to end in 2 days. So we have planned this important topic webinar on the year-end compliances in GST and ISD versus cross charges. And first time we have with us CA Mohit Gupta on CASA platform. Mohit ji, welcome to you on this channel. Asa ji is also here. Welcome, Asa ji. One of Thank the you so much. Thank you. One of the important topic, as we have said, year-end compliances. So definitely it is going to a good learning before the end of the financial year. I straight away requesting Mohit ji, before inviting Mohit ji, would like to brief about him. He is qualified chartered accountant and lawyer, having a rich experience of several years of working in top taxation firms in India, APRA and LKS. He is founder of Avinish Legal Consultant and he is having a decade of experience in the indirect taxation advisory. He was co-opted member of Indirect Tax Committee of NIRC of ICAI. He is two-time rank holder of CA Institute examination and has been actively involved in the various conventional and conferences of ICAI. He has delivered many seminars at the various forum, chapters, study circles, regional council. He regularly writes articles. He is also a GST trainer faculty of ICAI. He is having a uh, vast experience. He has co-authored books on the various topics under GST, service tax, and VAT. So, Muiji is having a good learning, good experience in GST. I request Muiji to take up the technical session and share your knowledge about the topic. Over to you, Muiji. Thank you so much, Sumit ji. And first of all, I would like to thank Sumit ji and Asha ji and Kasa for giving me this wonderful opportunity. I think March closing is a very busy time for all the professionals. So, at this time, all the professionals who have also taken out time of their schedule and come, big thanks to all of them also. So, I'll just share my screen. Uh, is my screen visible? Muiji, yes, perfect. My dear colleagues, in today's topics, so we will be covering three topics basically. First is your year-end compliances under GST law, which you have to follow every financial year. Then this financial year, हमारे पास दो major amendments और हैं. First is ISD, which is applicable from 1st April, and second is amnesty scheme, जिसके लिए last date of payment है 31st March. तो दो मेजर चेंजेस इस बार हैं जिसके लिए कट ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर का है विच इज स्पेसिफिक टू दिस ईयर. तो वो दोनों चीजें भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जो रेगुलर ईयर एंड कंप्लायंसेस होती हैं विच हैज टू बी टेकन केयर ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर अंडर जीएसटी, पहले थोड़ी देर उस पर डिस्कशन करते हैं. एंड वी विल बी ट्राई टू मेक दिस सेशन एज इंटरैक्टिव एज पॉसिबल. तो किसी भी पार्टिसिपेंट की, किसी भी ऑडियंस मेंबर की कोई भी क्वेरी है तो देन एंड देयर दे कैन आस्क अभी तो दैट. आपको सुनना है। Yes, yes, Muiji, okay. तो किसी भी पार्टिसिपेंट की कोई भी क्वेरी है तो वो उसी टाइम पूछ सकता है अगर वो टॉपिक से रिलेटेड है. अगर टॉपिक के अलावा कोई क्वेरी है देन आई वुड रिक्वेस्ट देम टू होल्ड दैट क्वेरी टिल एंड ऑफ द सेशन. एंड ऑफ द सेशन हम मेन टॉपिक के बाद देन वी कैन टेक अप दैट क्वेरी व्हेन द मेन सेशन हैज एंडेड. So with this, let us start our session. So first major change is e-invoicing. So e-invoicing की threshold में कोई change नहीं है. So e-invoicing की threshold 5 crores है and it has been 5 crores from quite some time. But the time limit has now changed. So पहले e-invoicing के लिए एक advisory आई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि time limit to generate e-invoice will be 30 days.
but this time limit is only applicable if your turnover is more than 100 crores. Now this turnover has been reduced from 100 crores to 10 crores. मतलब 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स अगर किसी भी बिजनेस का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, then they have to raise e-invoice within 30 days. After that, the GST portal will not allow them to generate e-invoice. अगर below 10 crore है, then they have the option on GST portal to generate e-invoice. But so this is the time limit on GST portal. इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका इनवॉइस उसके बाद ही जनरेट करेंगे. There are other provisions also. So we have rule 48 sub rule 4 of CGST rules, which says that if you are required to generate e-invoice, then any invoice other than e-invoice is not a valid invoice. मतलब अगर मैं एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हूँ, मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, मुझे जीएसटी में ई इनवॉइस रेज करना है. लेट से मैंने कोई कंसाइनमेंट भेजा, उसकी मूवमेंट के लिए मैंने इनवॉइस और ई वे बिल जनरेट कर दिया, लेकिन ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया. सो देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज मूवमेंट ऑफ गुड्स विदाउट इशुएंस ऑफ इनवॉइस. तो डिपार्टमेंट ने अगर उस कंसाइनमेंट को इंटरसेप्ट किया तो डिपार्टमेंट उस पर स्ट्रेट अवे 200% की पेनल्टी लगा सकता है. तो जो नॉर्मल इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस के प्रोविजंस होते हैं कि गुड्स में आपको रिमूवल से पहले इनवॉइस रेज करना है, सर्विसेज में विद इन 30 days ऑफ सर्विस रेज करना है, तो डिफॉल्ट रूल तो वही रहेंगे, आपको ई इनवॉइस उसी टाइम लिमिट के अंदर इशू करना है. दिस एडवाइजरी इज जस्ट टू गिव अ नॉर्मल रिलीफ कि अगर बाय मिस्टेक किसी टैक्स पेयर से ई इनवॉइस जनरेट होना रह गया, देन दे हैव गिवन टाइम लिमिट ऑफ 30 days फ्रॉम इशू ऑफ इनवॉइस डेट, कि जब भी आपका इनवॉइस डेट है उससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप विद इन 30 days रेज कर लो. तो पहले 30 days की टाइम लिमिट थी फॉर टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर मोर देन 100 crores. नाउ दैट लिमिट हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 100 crores to 10 crores. But normally you have to raise e-invoice as soon as your due date to invoice has come. So goods के केस में before removal of goods, services के केस में within 30 days from provision of service. Now इसमें एक practical doubt आता है कि अगर after 30 days also portal is allowing you to file e-invoice and by mistake miss हो गया किसी taxpayer से and after 30 days also portal allow कर रहा है e-invoice file करने के लिए, then in my view you should file you should generate the e-invoice. Not a problem. If portal is allowing, then it is not an issue. And the second major issue is legal validity of the advisory. बिकॉज ये जो भी इन्होंने 30 days की टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब की है, दैट इज गिवन वाइड एन एडवाइजरी इशूड अंडर जीएसटी लॉ. सो इसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है. मतलब देयर इज नो प्रोविजन इन जीएसटी एक्ट, जीएसटी रूल्स, जीएसटी सर्कुलर, जीएसटी नोटिफिकेशन, किसी भी लीगल मटेरियल में ये 30 days की टाइम लिमिट मेंशन नहीं है. सो इन माय व्यू अगर किसी क्लाइंट का बाय मिस्टेक 30 days के विद इन 30 days इज नॉट एबल टू जनरेट ई इनवॉइस, उसको 30 days के बाद ई इनवॉइस जनरेट करना है एंड पोर्टल इज नॉट अलाउइंग हिम टू जनरेट ई इनवॉइस, देन ही कैन चैलेंज दिस एडवाइजरी ऑल्सो ऑन द ग्राउंड कि ये जो 30 days की टाइम लिमिट है, दिस इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनीवेयर इन द लॉ. सो दिस इज नॉट अ लीगल टाइम लिमिट, दिस इज मेयरली अ प्रोसीजरल टाइम लिमिट. बट दैट इज ओनली इन द केस कि अगर किसी क्लाइंट से गलती हो गई है. वैसे तो हमें प्रोएक्टिवली सिस्टम ऐसा इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए कि हम बिफोर टाइम ही इनवॉइस जनरेट कर दें, क्योंकि धीरे धीरे ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस भी बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं. Then second is regarding goods transportation agency. So this is again a very small compliance. So जो goods transport agency है, goods transport operator है, उनके पास ऑप्शन होता है whether they can go in forward charge or they can go in reverse charge. So if they want to go in forward charge, they have to file a declaration in Annexure 5, which has to be filed before 15th March. If they want to go in RCM option, then they have to give a declaration in Annexure 6, which has to be filed by 31st March. और अगर वो कोई भी डिक्लेरेशन नहीं देते, तो जो भी ऑप्शन जीटीए ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में चूज किया हुआ था, सेम ऑप्शन विल बी कैरिड फॉरवर्ड इन 25-26. Then LUT. Again, LUT again, this is a very normal compliance. I think everyone knows कि आपको before start of financial year it is recommended if you are engaged in any export supplies or SEZ supplies without payment of tax, that you should file LUT before start of the financial year. That is recommended.
अगर आप बाद में भी फाइल करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट से अगर आपका कोई अप्रैल में कोई एक्सपोर्ट होना ही नहीं है, या अप्रैल में कोई एसइजेड सप्लाई होनी ही नहीं है, मई में होनी है, तो आप अप्रैल में भी फाइल कर दो। एलयूटी कैन बी फाइल्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, बट जब भी आप एलयूटी फाइल करोगे इट विल बी इफेक्टिव ओनली आफ्टर दैट डेट। तो जब भी आप ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26 यू आर अंडरटेकिंग एनी transaction of SCZ or export without payment, before doing that transaction you have to file the LUT. Then adoption of new invoice series. So this is again a very normal compliance. So as per rule 46 of CGST rules, every taxpayer has to maintain a unique invoice series. So that means कोई भी invoice duplicate नहीं होना चाहिए. So लीगली स्पीकिंग लॉ में ये नहीं लिखा कि आपको हर फाइनेंशियल ईयर से न्यू इनवॉइस की सीरीज स्टार्ट करनी है, बट प्रैक्टिकली इट इज वेरी वेरी कन्वीनियंट इफ यू स्टार्ट न्यू इनवॉइस सीरीज फ्रॉम एवरी न्यू फाइनेंशियल ईयर. It is also easy to convince department at the time of department audit if you have a separate new fresh series from start of every financial year. Then amnesty scheme, as we have discussed, amnesty scheme is a very big topic. So this we will cover separately in later part of the session. Then import export code. So any client who is importing or exporting any goods, they have to obtain IEC code. So once IEC code is obtained, it is valid for lifetime. पूरा lifetime valid रहेगा. Sorry. But it has to be no, KYC has to be done for IEC every year. तो हर साल आपको डीजीएफटी पोर्टल पर जाके इसकी केवाईसी के कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो आपको देनी पड़ती है. तो दैट केवाईसी प्रोसेस हैज टू बी डन एवरी ईयर. सो ड्यू डेट फॉर दैट इज 30 जून. तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए यू हैव टू डू दैट बिफोर 30 जून. बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. अगर आपने 30 जून तक इसको अपडेट नहीं किया, then your IEC will become inoperative, and once it becomes inoperative, you will not be able to do any import or export. So we have seen in a lot of cases कि जहाँ पे क्लाइंट ने गलती से केवाईसी होना रह गया, फिर उन्होंने कोई मटेरियल इंपोर्ट किया या एक्सपोर्ट किया और वो पोर्ट पे जाके अटक गया क्योंकि वहां पे उनका आईईसी इनवैलिड शो हो रहा है. सो दिस इज अ वेरी वेरी simple but very very important requirement that every business should take care if they are doing any import or export transactions. देन कॉम्पोजिशन स्कीम. सो जो एक एमएसएमई बिजनेसेस हैं जिनका टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ से, so they can opt for composition scheme. So if they are in regular scheme right till now and they want to opt for composition scheme in financial year 25-26, then they have to opt for CMP 02 before 31st March to opt for composition in financial year 25-26. An annual reversal of common ITC. So this is a very, very important amendment now. Very, very important compliance. So रूल 42 बात करता है कॉमन आईटीसी के रिवर्सल की. सो लेट मी टेक एन एग्जांपल कि लेट से एक पर्सन है, उनका एक हॉस्पिटल का बिजनेस है और उनका एक कंसल्टेंसी का भी बिजनेस है. सो हॉस्पिटल आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. जो मेडिकल सर्विसेज हॉस्पिटल देते हैं दोज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. जो उनका कंसल्टेंसी बिजनेस है, लेट से कुछ भी टैक्स कंसल्टेंसी है, बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, दैट इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी. सो रूल 42 बेसिकली क्या बोलता है कि जितना भी आपका टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड आईटीसी दैट इज फुली एलिजिबल. तो जो भी कंसल्टेंसी बिजनेस से रिलेटेड आईटीसी है दैट इज फुली एलिजिबल टू द टैक्स पेयर. जितना भी एग्जाम बिजनेस यानी हॉस्पिटल सर्विसेज से रिलेटेड आईटीसी है दैट आईटीसी इज कंप्लीटली इनएलिजिबल. बट जो कॉमन आईटीसी है, सो लेट्स से ये दोनों बिजनेसेस के लिए उस एसएससी का एक कॉमन हेड ऑफिस है जहाँ पे कॉमन टीम बैठती है, कॉमन स्टाफ बैठता है, वो सारे बिजनेसेस दोनों बिजनेसेस के लिए काम करते हैं. तो जो भी हेड ऑफिस का रेंट है, क्लीनिंग मेंटेनेंस है, हेड ऑफिस में कैपिटल असेट्स हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, तो जितने भी हेड ऑफिस के एक्सपेंस हैं दीज आर ट्रीटेड एज कॉमन एक्सपेंस बिकॉज वो एक्सपेंस टैक्सेबल सप्लाईज को भी पर्टेन करते हैं, वो एग्जाम सप्लाईज को भी पर्टेन करते हैं. So as per rule 42, you have to do proportionate reversal on the basis of turnover on those common services or goods ITC. तो उसमें जो आपको exempt turnover by total turnover का रेशियो लगा के you have to reverse the ITC, and that exercise is to be done on a monthly basis. तो अगर आपने जैसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 में उसको फॉलो किया होगा तो अप्रैल में ऐसे हर मंथ की करस्पॉन्डिंग 3B में आपको टर्नओवर कैलकुलेट करके यू हैव टू रिवर्स द करस्पॉन्डिंग आईटीसी फॉर दैट मंथ.
नाउ इसमें एनुअल कंप्लायंस क्या है? आफ्टर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, रूल 42 सेज दैट यू हैव टू recalculate द होल अमाउंट फॉर द कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपने हर महीने तो रिवर्सल किया, आफ्टर एंड ऑफ 24-25 अब आपको पूरे साल का अमाउंट रिकैलकुलेट करना है और एनुअल बेसिस पे उसको रेशो को लेना है। तो पहले हम मंथली बेसिस पे सेल्स का रेशो ले रहे थे, अब हमें एनुअल बेसिस पे सेल्स का रेशो लेना है। तो उसमें क्योंकि दिस इज प्योर मैथमेटिक्स, बट कई बार मंथली रेशो की जगह जब हम एनुअल रेशो लेते हैं तो रिवर्सल में थोड़ा कम ज्यादा हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कई बार क्या होता है, ड्यूरिंग फाइलिंग जीएसटी रिटर्न्स सम एरर्स, सम ओमिशन, सम मिस्टेक्स आर देयर, जो हमें ईयर एंड में पता चलती है व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग एट आवर अकाउंट्स। those kind of mistakes also can be taken care of when we are doing this final annual recalculation under rule 42. तो as per rule 42, the maximum amount, maximum time to do this recalculation and reverse or reavail the ITC. So let's say आपने मंथली बेसिस पे किसी महीने आपका 100 रुपीज का रिवर्सल आया, किसी महीने 90 का आया, किसी महीने 80 का आया, ऐसे करते 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 पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपका टोटल रिवर्सल हुआ है 1000 रुपीज का, फ्रॉम अप्रैल 24 टू मार्च 25। आफ्टर एंड ऑफ मार्च आपने उस पूरे अमाउंट को रिकैलकुलेट किया, एनुअल रेशोज लिए, कुछ गलतियां हो गई थी उनको भी इनकॉर्पोरेट किया। सो वो सब कंसिडर करने के बाद योर फाइनल रिवर्सल अमाउंट कम्स आउट टू 1100। तो हमने अभी तक रिवर्सल 1000 रुपीज का किया है, बट फाइनल रिवर्सल 1100 का आ रहा है। तो वो डिफरेंशियल 100 रुपीज अब एसएससी को रिवर्स करना है। तो उसकी जो टाइम लिमिट है दैट इज सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो आप सितंबर 2025 की रिटर्न तक उसको रिवर्स कर सकते हो। लेकिन जीएसटी लॉ बोलता है कि उस पे इंटरेस्ट आपको 1 अप्रैल से पे करना है। तो अगर आप सितंबर के रिटर्न में जाके उसको रिवर्स करोगे तो आपको उस पे अप्रैल से लेके सितंबर तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लायंस। तो बहुत बिजनेसेस इस पे ध्यान नहीं देते, वो सितंबर में जाकर रिवर्सल करते हैं, लेकिन इतने में अप्रैल से सितंबर का 6 महीने का इंटरेस्ट आ जाता है। तो दिस इसीलिए दिस इज अ रिक्वायरमेंट विच शुड बी डन एज सुन एज पॉसिबल। तो अगर आप मार्च के रिटर्न में उसको रिकैलकुलेट करके डाल देंगे वो तो सबसे बेस्ट है, बट अगर मार्च में नहीं पॉसिबल तो डू इट एज सुन एज पॉसिबल, अप्रैल मई जून जितना जल्दी हो सकता है आप उतना जल्दी इसको कर लीजिए, जिससे इंटरेस्ट कॉस्ट कम से कम है। देन नेक्स्ट अगेन, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लायंस। सो कुछ टाइम पहले एक मार्केट में काफी कंफ्यूजन था, काफी टैक्स पेयर को, कंसल्टेंट्स को कंफ्यूजन था कि जो जीएसटी या 9 और 9 सी हम फाइल करते हैं, अगर लेट फाइल हुई है तो उसकी लेट फीस कब तक कैलकुलेट करेंगे। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जीएसटी या 9 एंड 9 सी की ड्यू डेट थी 31 दिसंबर 2023। तो लेट से एक हमारे टैक्स पेयर थे मिस्टर एबीसी, उन्होंने 31 दिसंबर तक वो 99 से फाइल नहीं कर पाए, तो उन्होंने 15 जनवरी को जीएसटी आर 9 फाइल किया, 20 जनवरी को जीएसटी आर 9 सी फाइल किया। अब जब उन्होंने 15 जनवरी को पोर्टल पे जीएसटी आर 9 फाइल किया तो 15 दिन की तो उन्होंने लेट फीस पे कर दी होगी, क्योंकि जब तक आप जीएसटी आर 9 की लेट फीस पे नहीं करते पोर्टल आपको जीएसटी आर 9 फाइल ही नहीं करने देता। सो 15 डेज फ्रॉम 1 जनवरी टिल 15 जनवरी उसकी लेट फीस तो पोर्टल पे हो ही गई होगी, क्योंकि उसके बिना जीएसटी आर 9 फाइल ही नहीं हो सकती। But GSTR 9C was filed on 20th January. So the department was issuing notices to a lot of taxpayers कि आपका डिले जो है एनुअल रिटर्न में डिले वो 20 डेज का है, क्योंकि आपकी 9C तो 20 जनवरी को जाके फाइल हुई है। सो हम तो फाइलिंग तभी कंप्लीट मानेंगे जब 9C फाइल हुआ है। 9 इज नॉट द एनुअल रिटर्न, 9 + 9C इज द एनुअल रिटर्न। तो जब तक 9C फाइल नहीं हुआ तब तक एनुअल रिटर्न की फाइलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो दैट वाज अ लिटिगेशन व्हिच वाज गोइंग ऑन। लास्ट ईयर ओनली गवर्नमेंट केम विद अ सर्कुलर जिसमें उन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया कि एनुअल रिटर्न विल बी कंप्लीट ट्रीटेड एज फाइल्ड व्हेन बोथ 9 एंड 9C हैव बीन फाइल्ड। तो मतलब 9 अगर आपने 15 जनवरी को फाइल की, 9C आपने 20 जनवरी को फाइल किया, तो जीएसटी लॉ में डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विल बी कंसिडर्ड एज 20th जनवरी, क्योंकि 20th जनवरी को जाके दोनों रिटर्न फाइल हुई हैं। लेकिन फॉर पास्ट फाइनेंशियल ईयर्स गवर्नमेंट केम अप विद एमनेस्टी स्कीम, क्योंकि पास्ट में बहुत, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम, बहुत बिजनेसेस की एनुअल रिटर्न की फाइलिंग डिले हुई थी। तो अब जितने बिजनेसेस हैं उन्होंने 9 तो फाइल कर दी होगी, क्योंकि 9 में तो ऑटोमेटिकली लेट फीस लगती है। तो गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम में क्या रिलीफ दिया, द डिफरेंशियल लेट फीस।
फॉर द पीरियड बिटवीन 9 and 9C। तो जैसे हमारे एग्जाम्पल में 15 जनवरी को 9 फाइल हुआ था, 20 जनवरी को 9C फाइल हुआ था। तो 15 जनवरी तक की तो लेट फीस टैक्स पेयर ने पे कर दी होगी, क्योंकि उसके बिना पोर्टल आपको 9 ही फाइल नहीं करने देगा। लेकिन जो 20 जनवरी तक 9C फाइल हुई, तो जो 15 जनवरी से 20 जनवरी यानी 5 एडिशनल डेज है, गवर्नमेंट ने वो 5 एडिशनल डेज की लेट फीस वेव ऑफ कर दी है, ऑन द कंडीशन दैट जीएसटीआर 9C इज फाइल्ड बाय 31 मार्च 2025। तो आपके अगर किसी भी क्लाइंट की जीएसटीआर 9 या 9C पेंडिंग है विच हैज नॉट येट बीन फाइल्ड, देन प्लीज मेक श्योर दैट 9 and 9C आर फाइल्ड बिफोर 31 मार्च टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस एमनेस्टी स्कीम। अदरवाइज गवर्नमेंट पूरी लेट फी लेवी करेगी कंसिडरिंग द डेट ऑफ जीएसटीआर 9C एज द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। Then next is mandatory registration as an ISD. So again, this is a very big topic. So this we will cover separately after we complete the year-end compliances portion. Then next is year-end reconciliation. So फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितने लीगल रिक्वायरमेंट्स थी ईयर एंड पे, जो जो आपको लीगली रिक्वायरमेंट होती हैं, लीगली यू हैव टू डू बिफोर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और एट द स्टार्ट ऑफ अ फ्रेश फाइनेंशियल ईयर, वो हमने डिस्कस कर लिया। बट उसके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनमें लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने पे ही आपको कंप्लीट करनी है, बट प्रैक्टिकली दे आर वेरी वेरी हाईली रिकमेंडेड कि प्रैक्टिकली आप वो काम कर लेंगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की क्लोजिंग में इट विल बिकम मच इजियर फॉर यू। सो फर्स्ट इज ईयर एंड रिकंसिलेशन। सो अगर आपका ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जीएसटी रिटर्न्स में किसी भी टाइप की कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है, एंड इफ यू कैन डू सम बेसिक रिकंसिलेशन बिफोर फाइलिंग मार्च रिटर्न, तो जो भी आपका ड्यूरिंग लेट से अप्रैल टू फेब में कोई भी आपका कोई भी गलती है, आपका कोई वन में कोई डिक्लेरेशन गलत चली गई, कोई सप्लाई रिपोर्ट होनी रह गई, 3B में किसी में टैक्स पे होना रह गया, कोई आईटीसी लेना रह गया, आईटीसी का रिवर्सल रह गया, कोई आरसीएम की लाइबिलिटी पे होनी रह गई, कुछ भी इस टाइप का इशू है, तो अगर आप मार्च के रिटर्न में ही उसको डिस्क्लोज कर देंगे तो प्रैक्टिकली इट विल बिकम वेरी वेरी इजी। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, अगर आप उसको मार्च के बाद डिस्क्लोज करते हैं, दैट बिकम्स एन इंटर ईयर एडजस्टमेंट। वो फिर आपको जीएसटीआर 9 में यू हैव टू रिपोर्ट इट एज अ सेपरेट फिगर इन टेबल 10, 11, 12, 13। सो प्रैक्टिकली क्या होता है, जब डिपार्टमेंट ऑडिट के लिए आता है, डिपार्टमेंट ऑडिट के लिए आता है, स्क्रूटनी के लिए आता है, सो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स वुड दे चेक इज द इंटीरियर एडजस्टमेंट, कि अच्छा इनकी कोई इंटीरियर एडजस्टमेंट तो नहीं है। अगर होती है तो देन दे गो इनटू डीप कि अच्छा ये आपने किस चीज की इंटीरियर एडजस्टमेंट की है, अच्छा टैक्स लेट पे की है, ऐसा और कोई केस तो नहीं है, हमें अपने सारे सेल रजिस्टर दिखाओ, कोई केसेस डिले पेमेंट का और कोई तो केस नहीं है जो ड्यूरिंग द ईयर भी आपने डिले पेमेंट किया हो। तो दैट गिव्स अ वेरी गुड रीजन टू डिपार्टमेंट टू चेक योर बुक्स फॉर नॉन कंप्लायंस। तो इसीलिए इफ पॉसिबल ट्राई टू अवॉइड इंटीरियर एडजस्टमेंट। तो अगर आप, इट इज पॉसिबल, इट इज बेटर that you do this basic reconciliation before end of financial year, before filing March return, and do those adjustment in March return, जिससे आपका कहीं भी वो 9 सी में सेपरेट फिगर कहीं ना रिपोर्ट हो। Then next is vendor payment. So this is again a very very important clause, not just from GST perspective but from income tax law also. So as per rule 37, read with section 16 subsection 2 second proviso, under GST, if you have not made payment to your vendor for more than 180 days, roughly 6 months, तो अगर 6 महीने तक आपने अपने वेंडर को पेमेंट नहीं की, then you have to reverse ITC on the invoices of those vendor। तो अगेन अब ऐसा इसमें जरूरी नहीं है कि 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द ईयर। अगर ड्यूरिंग द ईयर कभी भी आपके किसी वेंडर से आपने 6 महीने से ज्यादा पेमेंट नहीं की है, देन यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन द आईटी, यू हैव टू रिवर्स द आईटीसी एंड यू हैव टू पे इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ आईटीसी अवेलमेंट टिल द डेट ऑफ आईटीसी रिवर्सल। और जब आप रीपेमेंट करोगे देन यू कैन रीअवेल द आईटीसी। बट 31 मार्च की इसमें क्या सिग्निफिकेंस है, when again the department comes for department audit or department scrutiny,
वो क्या चेक करते हैं, वो आपकी बैलेंस शीट ओपन करेंगे एंड दे विल चेक व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एज ऑन 31st मार्च, एंड उसकी क्या एजिंग है, हाउ मच अमाउंट, अगर आपके टोटल 1 करोड़ के आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हैं ऑन 31st मार्च, सो हाउ मेनी ऑफ दीज क्रेडिटर्स आर ड्यू फॉर मोर देन 180 डेज। तो 31st मार्च में अगर आपके ऐसे कोई वेंडर्स आउटस्टैंडिंग है जिसकी 180 डेज से ज्यादा पेमेंट ओवर ड्यू है, तो दैट अगेन बिकम्स अ ट्रिगर पॉइंट फॉर डिपार्टमेंट टू चेक ऑल द पेमेंट्स थ्रू द ईयर। एक बार उनको एक केस मिल गया 31st मार्च का, तो लोग पूरे साल के बुक्स में चेक करेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर भी कोई ऐसा नॉन कंप्लायंस तो नहीं हुआ जहां 180 डेज से ज्यादा ओवर ड्यू था हो। सिमिलरली इनकम टैक्स में भी जो लास्ट ईयर प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुआ है एमएसएमई के लिए स्पेसिफिकली, कि इफ एनी ऑफ द एमएसएमई इनवॉइसेस आर ओवर ड्यू एज ऑन 31st मार्च, दे विल ऑल्सो गेट डिसअलाउड ड्यूरिंग योर इनकम टैक्स computation. So this becomes very important from income tax perspective also. So it is recommended that you check your outstanding vendors during March. तो जो भी आपके 31st मार्च पे आउटस्टैंडिंग वेंडर्स आ रहे हैं, either you pay those vendors before 31st March, or at least from GST perspective you reverse their ITC. If you're not going to pay them during the financial before 31st March, at least reverse their ITC, so that आपकी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी रुक जाएगी. If you don't reverse the ITC, you reverse it after 1 month, 2 months, or after 3 years when the department comes, then your interest liability will keep on increasing. So that is something we have to take care of when, especially in regards to vendor payment. Now next, again, this is a very important compliance, non-filing of GST at 3B by vendors. तो अब क्या प्रॉब्लम हुई, तो लेट्स से मैंने, मोहित गुप्ता ने किसी पर्सन से एक सर्विस ली, कोई सर्विस लिया, कोई गुड्स परचेज किए। अब मिस्टर एबीसी से उन्होंने गुड्स परचेज किए मोहित गुप्ता ने। अब मिस्टर एबीसी ने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया प्रॉपर, उसका ई इनवॉइस भी इशू किया हुआ है उन्होंने। लेट्स से मार्च की बात है, मार्च 2025 की, तो टैक्स इनवॉइस भी इशूड है, ई इनवॉइस भी इशूड है, एबीसी ने उसको जीएसटी वन में भी दिखा दिया। मोहित गुप्ता को गुड्स और सर्विसेज भी रिसीव हो गए, मोहित गुप्ता के टू बी में भी आ गया, प्रूफ ऑफ गुड रिसीट पे भी कोई डाउट नहीं है, मूवमेंट भी प्रॉपर है, सब चीजें प्रॉपर है। लेकिन मिस्टर एबीसी ने मार्च की जीएसटी 3 भी फाइल नहीं की। वन फाइल कर दी है, टू बी में भी दिख गया मोहित गुप्ता को, लेकिन उन्होंने मार्च की 3 भी फाइल नहीं की, और 3 भी उन्होंने सितंबर 2025 तक भी फाइल नहीं की। देन मोहित गुप्ता हैव टू रिवर्स आईटीसी बाय नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो मतलब अगर एबीसी ने 30 सितंबर 2025 तक अपनी जीएसटी 3 भी फाइल नहीं की, तो जब भी मैं अपनी नवंबर 2025 अक्टूबर, बेसिकली अक्टूबर की रिटर्न जब फाइल करूंगा, तो आई हैव टू रिवर्स दैट आईटीसी, एंड दैट हैज टू बी पेड विद इंटरेस्ट। फिर जब वो फाइल कर देगा आई कैन रीअवेल, बट पहले तो इंटरेस्ट कॉस्ट तो एक बार आ गई, तो दैट इज अ परमानेंट कॉस्ट। सो again, legal deadline is September, but this is one activity wherein it takes a lot of time, because आपको सिर्फ अपनी compliance नहीं देखनी, आपको अपने vendors की compliance भी देखनी है। So if a client starts this process in March or April, then they have a very good amount of time to follow up with the vendors. आप अभी start कर दोगे, 5-6 महीने तक आप regular vendor से follow up करते रहोगे, then there is a very good chance that by September you will finish off all the invoices wherein vendor has not filed their 3B. So सारे vendor से आप compliances करा लोगे या mostly से करा लोगे, the amount of non-compliance will be very nominal. So that is why it is important to start this reconciliation exercise and vendors follow up as soon as possible. So नहीं, हमने मेजर कंप्लाइंसेस कवर कर लिए हैं कि नॉर्मली पीरियोडिक रेगुलर ईयर एंड कंप्लाइंसेस क्या होते हैं. So if any audience, any participants have any query, maybe we can take 1 or 2 queries now, and rest of the queries then we can take after the session. So any participants have any queries?
मुझे एक अवीज जन पूछ रहे थे, सर्विस प्रोवाइडर कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। सर सर्विस प्रोवाइडर के लिए सेपरेट कॉम्पोजिशन स्कीम है। तो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर के लिए जो कॉम्पोजिशन स्कीम होती है, देयर थ्रेशोल्ड इज 1.5 करोड़ एंड जीएसटी रेट इज 1%। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जो कॉम्पोजिशन स्कीम है, देयर थ्रेशोल्ड लिमिट इज 50 lakhs एंड देयर जीएसटी रेट इज 6%। So service providers can go for that composition scheme. And Naresh Jain ji is asking, IEC is not required for export of services. Uh, so legally it is required, but practically it is not. Practically it is only needed for import and export of goods, not services. जी। ज्योति गुप्ता queries, invoice related to March 24 once filed, if any vendor reverse the input in September, then what to do? Jyotirji, I'm not able to understand your query. I think she is saying कि जो मार्च 24 का इनवॉइस था, वेंडर ने सितंबर में रिवर्स कर दिया, हम्म। सितंबर 24 में। अब मुझे क्या करना है? अगर आपने एक्चुअल में उससे सर्विसेज रिसीव की है, सो दैट डिपेंड्स कि अगर उसने इनवॉइस को ही अमेंड कर दिया, then there is nothing you can do because GST law clearly says कि आपके 2B में इस इनवॉइस को रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। If it is not reflecting in your GST or 2B, then you cannot avail ITC. But let's say उसने क्रेडिट नोट के थ्रू उसको रिवर्स कर दिया, हम्म। then you can take the ITC on the invoice and you can say credit note is not a valid document. कोई मुझे क्रेडिट नोट नहीं मिला है वेंडर से, that is not a valid document, so I'm not reversing my ITC. एंड अभी जो रिसेंटली इन्होंने एक इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस भी इंट्रोड्यूस किया है जीएसटी पोर्टल पे, जी। सो दैट आल्सो गिव्स द रेसिपिएंट द राइट टू रिजेक्ट द क्रेडिट नोट। सो इस केस में अगर ऐसा कोई गलत क्रेडिट नोट सप्लायर ने गलती से शो कर दिया इनवॉइस। वही वही चीज कह रही है, फर्दर सी इज एडेड कि सर्विस एक्चुअली रिसीव्ड, बट ही सिंपली अमेंड द इनवॉइस विद जीरो वैल्यू, फ्रॉडुलेंटली वी कैन से, या किसी भी रीजन से। तो देखिए जीएसटी लॉ में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइट बिकॉज सेक्शन 2 क्लियरली सेज दैट इनवॉइस हैज टू कम इन योर टू बी। सो राइट। ऑब्वियसली हम वी कैन फाइट, वी कैन टेक द ग्राउंड के भी एक बार तो उसने 2B में दिखा दिया, सब्सिक्वेंटली अमेंड करने से फर्क नहीं पड़ता, बट दैट विल बी वेरी वेरी लिटिगेटिव। दैट इज एक अ क्वेरी केस तो है, आगे थोड़ा इफ लिटिगेटिव रहेगा, वो जी, डिपार्टमेंट लोअर लेवल पे नहीं एक्सेप्ट करेगा। राइट। एक क्वेरी है, इफ एनी जीटीए हैज ऑप्टेड फॉर एफसीएम for 25-26, can he revert back for 25-26? वंस ही हैज फाइल्ड ही कैन नॉट चेंज। No, no reversal is allowed. नो रिवर्सल इज अलाउड। Hmm. See, Vijender Singh is asking, what if normal tax invoice is generated in case of goods and later on e-invoice is generated within 30 days? Within 30 days. And Section 31 talks about tax invoice and not e-invoice. देखिए इसमें रूल 48 सब रूल 4 अंडर सीडीएसटी रूल्स वो क्लियरली कहते हैं कि इफ यू आर रिक्वायर्ड टू जनरेट ई इनवॉइस, Hmm. देन एनी डॉक्यूमेंट अदर देन ई इनवॉइस इज नॉट अ वैलिड टैक्स इनवॉइस। सो जब तक आप ई इनवॉइस रेज नहीं करोगे उसको वैलिड टैक्स इनवॉइस बोला ही नहीं जाएगा। सो वैलिड टैक्स इनवॉइस नहीं माना जाएगा ना? करेक्ट। सो आप दोनों को कंबाइंड रीडिंग करोगे तो उसकी इंटरप्रिटेशन यही आएगी कि आपको गुड्स के केस में बिफोर रिमूवल आपको वैलिड ई इनवॉइस जनरेट करना है। एक रवि जी की क्वेरी है, व्हेन वी हैव डाउनलोडेड टेबल 8A फ्रॉम जीएसटीआर 9 showing 20 invoices 10 lakh rupee ITC, but as per 9 auto populated in table 8A ITC is showing 4.5 lakhs only. What can be the reason? देखिए जीएसटी का 9 में टेबल 8A में ऑटो पॉपुलेटेड फिगर और एक्सेल की फिगर का रीजन तो शायद भगवान को भी नहीं पता। तो उसका रीजन तो, बट ऑन अ सीरियस नोट,
उसके मतलब ऐसे ऑलमोस्ट सारे ही क्लाइंट्स के हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस वो फिगर्स आपस में मैच नहीं होती। सो देर इज नथिंग यू कैन डू। अगर डिपार्टमेंट से कभी नोटिस आता है तो आप एक्सेल फाइल के बेसिस पे रिकंसिलेशन करके यू कैन गिव देम एन आंसर कि भी एक्सेल फाइल जो आ रही है हमने उससे रिकंसाइल कर दिया, लेकिन अब ऑटो पॉपुलेटेड फिगर का कोई बैकअप नहीं है, कोई करेक्ट ब्रेकअप नहीं आ रहा। तो देर इज नथिंग विच अ टैक्स पेयर कैन डू ऑन हिज एंड। यू कैन गिव, यू कैन मे बी रेज अ ग्रीवियंस ऑन द जीएसटी पोर्टल कि सर ये 8.5 लाख की फिगर मैच नहीं हो रही, गिव मी अ ब्रेकअप। But राइट। there is no one who can give you the right breakup for that amount. सुशील जी पूछ रहे हैं, सर इज इट नेसेसरी टू चेंज द सेल इनवॉइस सीरीज एवरी ईयर? व्हाट इफ इट इज नॉट चेंज एंड द ओल्ड सीरीज कंटिन्यूड? देखिए लीगली स्पीकिंग देर इज नो बार। जीएसटी लॉ सिर्फ इतना कहते हैं कि आपका इनवॉइस नंबर यूनिक होने चाहिए, मतलब सेम इनवॉइस नंबर आपका ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर रिपीट ना हो। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब भी डिपार्टमेंट ऑडिट चल रहा है तो अगर आपका लेट्स से इनवॉइस नंबर 1 से स्टार्ट हुआ पिछले किसी फाइनेंशियल ईयर में, फिर मार्च 25 में आपका लेट्स से 150 पे आके वो सीरीज खत्म हुई, फिर अप्रैल से आपने 151 से स्टार्ट कर दिया, तो डिपार्टमेंट ऑडिट में थोड़ा प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं। डिपार्टमेंट मानता ही नहीं है कि वो पिछले साल के इन्वॉइसेस हैं। वो बोलते हैं कि हम मानेंगे कि आपने स्टार्टिंग के 150 इन्वॉइस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 25-26 यू हैव इशूड एंड नॉट शोन टू डिपार्टमेंट। So these kind of unnecessary harassment is done by a department in this case. So practically we suggest that if you start a new invoice series every financial year, practically it is better. Legally speaking कोई issue नहीं है। कोई इशू नहीं, राइट। सर इफ जीटीए हैज ऑप्टेड एफसीएम फॉर 25-26, is he liable to file annexure 6 in 26-27? देखिए जीटीए के लिए ओनली इफ ही वांट्स टू चेंज द ऑप्शन देन ओनली ही नीड्स टू फाइंड एन अनेक्जर। अगर वो अनेक्जर फाइल नहीं करता तो जो भी उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में चाहे एफसीएम चल रहा था चाहे आरसीएम चल रहा था वो सेम ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो ही ओनली नीड्स टू फाइल इफ ही वांट्स टू चेंज फ्रॉम एफसीएम टू आरसीएम और फ्रॉम आरसीएम टू एफसीएम। Any rule or law, any you can quote any rule number if you remind. तो नहीं ये सर जो जिस नोटिफिकेशन से ये जीटीए के सारे चेंजेस आए थे Hmm. उसी नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगा। एग्जैक्ट नंबर मुझे चेक करना पड़ेगा। Okay. Okay. So we can move forward, Moichi. तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर द एमनेस्टी स्कीम। Yes. तो एमनेस्टी स्कीम भी अगेन दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल डेडलाइन फॉर एमनेस्टी स्कीम बिकॉज टुडे वी आर सिटिंग ऑन 29th मार्च एंड दैट इज ऑल्सो ओवर। वी आर सिटिंग ऑन 29th मार्च इवनिंग एंड ड्यू डेट फॉर Yes. टैक्स पेमेंट अंडर एमनेस्टी स्कीम इज 31st मार्च। तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट कि अगर किसी भी क्लाइंट का एमनेस्टी स्कीम की एप्लीकेशन फाइल होनी है देन वी हैव टू मेक द टैक्स पेमेंट विद इन नेक्स्ट 2 days। So so we'll try to cover a detailed overview of the scheme कि क्या स्कीम है, कौन कौन उसमें जा सकता है, किस किस को उसमें जाना चाहिए। तो फर्स्ट इज व्हाट इज द स्कीम। तो बेसिकली जो आपके स्टार्टिंग के 3 फाइनेंशियल ईयर थे 17-18, 18-19, 19-20, तो नो जस्ट आप डायल बैक योर टाइम। आप अभी हम 2025 में हैं, आप अब से 8 साल पहले रहिए 2017 में जब नया नया जीएसटी आया था। कितने जीएसटी में कंफ्यूजन थे, बिल्कुल नया लॉ था। क्लाइंट्स को भी इतने सारे कंफ्यूजन थे, कंसल्टेंट्स को भी इतने ज्यादा कंफ्यूजन थे, डिपार्टमेंट को तो सबसे ही ज्यादा कंफ्यूजन थे। किसी को जीएसटी लॉ के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं थी। तब गवर्नमेंट से बार बार बोला गया था कि ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर टैक्स पेयर से कोई भी गलती है तो आप उसे पीनलाइज मत कीजिएगा। गवर्नमेंट ने भी पूरा अश्योरेंस दिया था कि हम टैक्स पेयर को पीनलाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन फिर हुआ क्या, 2017-18 की असेसमेंट्स कब स्टार्ट हुई? असेसमेंट स्टार्ट हुई 2023 में जाके, जब कोविड आया। कोविड के बाद उसको और डेफर किया। तो पहले 2020 में स्टार्ट हुआ, फिर वो खिंचते खिंचते 2022 2023 में जाके फाइनली 17-18 की असेसमेंट्स होने स्टार्ट हुई।
2023 में सबको जीएसटी लॉ पूरा क्लियर हो चुका था, क्योंकि 7-8 साल, 6-7 साल हो चुके थे। तो फिर जीएसटी डिपार्टमेंट ने किसी की नहीं सुनी, फिर उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली जीएसटी लॉ को इंटरप्रेट किया, स्ट्रिक्टली नोटिस निकाले। कितने क्लाइंट्स के तो इनफैक्ट 17-18 के 2A 3B के नोटिस आए हैं। जबकि ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 जीएसटीआर 2A वॉज नॉट इवन अवेलेबल ऑन पोर्टल। जीएसटीआर 2A पहली बार पोर्टल पे मई 2018 में आया है। ड्यूरिंग 17-18 जीएसटीआर 2A वॉज नॉट इवन अवेलेबल ऑन पोर्टल, और डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा डिमांड 17-18 में 2A वर्सेस 3B के नोटिस की निकाली है। So, but even after all those things, the taxpayers were ready to pay the tax. Most of the taxpayer was of the view कि अगर हमसे कोई गलती हुई है, we will pay the tax. लेकिन उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम क्या थी, इंटरेस्ट और पेनल्टी कॉस्ट। क्योंकि अब हम 17-18 के लिए जब आप 23 में उसकी डिमांड निकालोगे और 18% पर एनम का इंटरेस्ट रेट है, सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस द इंटरेस्ट कॉस्ट वाज मोर देन द टैक्स अमाउंट। तो टैक्स अमाउंट तो 1 लाख का होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट 1.25 लाख की आधी होगी, plus 10% penalty under Section 73. So the taxpayers were ready to pay the tax amount, but interest और penalty cost इतनी heavy थी कि they were not able to pay that amount also. So उसके लिए काफी इंडस्ट्री की तरफ से प्रेशर था कि आप एक एमनेस्टी स्कीम लेके आइए। So the government came out with the amnesty scheme. So basically what is the amnesty scheme, कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 ये 3 फाइनेंशियल ईयर का मैटर है, और सेक्शन 73 में ऑर्डर पास है, तो सेक्शन 74 के ऑर्डर कवर्ड नहीं है, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, जेन्युइन केस होना चाहिए। अगर 73 के ऑर्डर पास है स्टार्टिंग के 3 फाइनेंशियल ईयर के, एंड दोज नोटिसेस शुड नॉट बी फॉर एरोनियस रिफंड। तो आपकी कोई भी आउटपुट लाइबिलिटी, आईटीसी, आरसीएम, इससे रिलेटेड नोटिसेस कवर्ड है, बट एरोनियस रिफंड नहीं होना चाहिए। तो अगर इस कैटेगरी में आपके इनवॉइसेस आते हैं, देन यू कैन पे द टैक्स अमाउंट एंड योर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी विल बी कंप्लीटली वेव्ड ऑफ। So this is the basic concept of the amnesty scheme. Then, so some small points, important points regarding the amnesty scheme. So इसमें section 16(5) और 16(6) का भी benefit दिया है. So section 16(5) another relief given by the government. जो सेक्शन 16(4) के बहुत लोगों को नोटिसेज आए हैं कि जहाँ पे स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम और अदरवाइज भी इनिशियल ईयर्स में बहुत लोगों ने जीएसटीआर 3 भी डिले फाइल किया था। तो उसमें क्या दिक्कत आई थी, सो लेट्स से मार्च 2020 की जीएसटीआर 3 भी है, टैक्स पेयर के पास उस टाइम फंड नहीं थे, कोविड लग गया था, बिजनेस का लॉकडाउन था। वो जीएसटीआर 3 भी मार्च 20 की 3 भी जो कि अप्रैल में फाइल होनी थी, वो टैक्स पेयर ने जाके दिसंबर 2020 में फाइल की। उस 3B के अंदर उसने 100 रुपीज की लाइबिलिटी दिखाई, 80 रुपीज का आईटीसी दिखाया, 20 रुपीज का आईटीसी और 20 रुपीज की टैक्स लाइबिलिटी उसने ई कैश लेजर से पे कर दी। नाउ डिपार्टमेंट इशूड अ नोटिस टू हिम सेइंग that you have filed your GST or 3B after the due date for financial year 1920 as per section 16(4). 16(4) में ड्यू डेट होती है सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, आप मतलब ड्यू डेट ऑफ सितंबर यानी 20 अक्टूबर। तो आपने 20 अक्टूबर 2020 के बाद जीएसटी 3B फाइल की है, तो जो भी आपने उसमें 80 रुपीज का आईटीसी लिया है, दैट आईटीसी इट सेल्फ इज इनवैलिड, आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते, वो 80 रुपीज आपको पूरा ई कैश लेटर से देना था। तो इनिशियल ईयर्स में ये बहुत ज्यादा लोगों को ये दिक्कत आई, बहुत ज्यादा लोगों को ये नोटिस इशू हैं। तो फॉर फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, ये 4 साल के लिए गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया था। दे एक्सटेंडेड दिस टाइमलाइन टू 30th November 2021। सो दिस इज द रिलीफ ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 5। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 गिव्स रिलीफ इन द केस ऑफ रेवोकेशन, कि जहाँ पे किसी एसएससी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, उसके बाद उसने कुछ टाइम बाद उसको रिवोक करा लिया, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड उस वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, रिटर्न उसने बाद में फाइल की, तो अगेन 16(4) की टाइम लिमिट उसके ऊपर नहीं लगेगी। तो ये दोनों ही 16(5) और 16(6) दोनों रिलीफ 16(4) के लिए ही हैं, एक इनिशियल ईयर्स के लिए, एक रेवोकेशन के केस के लिए, कैंसिलेशन एंड रेवोकेशन। So this benefit has also been incorporated in the amnesty scheme. So अगर आपका कोई 16(5) को ऑर्डर आया हुआ है, then you don't need to do anything as per amnesty, it is completely waived off. सेकंड, अब आपका कोई ऐसा ऑर्डर आया हुआ है जिसके अंदर आपके दो इशूज हैं। सो लेट्स से आपका एक इशू है इनएलिजिबल आईटीसी का, जिसमें लेट्स से 100 रुपीज की डिमांड है। सेकंड इशू आपका सेक्शन 16(4) का है, कि जिसमें आपका 1920 का एग्जांपल लेते हैं, 1920 का रिटर्न लेट फाइल हुई थी, तो उन्होंने 16(4) में आपकी 200 रुपीज की डिमांड निकाल दी है।
Now you want to go for amnesty scheme for this order. So they have given this relief कि amnesty scheme में although you need to pay the complete tax, लेकिन जितना टैक्स 16(5) और 16(6) में कवर्ड है आपको उतना टैक्स भी देने की जरूरत नहीं है. सो इशू 2 जो कि 16(4) का इशू था, यू डोंट नीड टू पे दैट टैक्स अमाउंट ऑल्सो. जो आपका फर्स्ट इशू था इन एलिजिबल आईटीसी का 100 रुपीज का, यू ओनली पे द 100 रुपीज एंड योर कंप्लीट डिमांड ऑर्डर विल बी ड्रॉप. So this is basically the benefit of 16 subsection 5 and 16 subsection 6. So and all the notices, so show cause notice, order in original passed by the adjudicating authority and order in appeal passed by the first appellate authority. All the litigation stages are covered. अगर आपको कोई ऑर्डर 74 में पास हो गया, so let's say आपको ओरिजिनल ऑर्डर पास हो गया 74 में, but when you went to first appeal before the appellate authority, they confirm the demand on merits. बट दे ड्रॉप द एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड. उन्होंने बोला कि डिमांड तो आपकी ठीक कंफर्म हुई है बट दिस इज नॉट अ केस ऑफ फ्रॉड, वी बिलीव दैट यू आर अ बोनाफाइड केस. तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर रीअसेस दैट नोटिस अंडर सेक्शन 73. तो दैट नोटिस इज ऑल्सो कवर्ड बिकॉज दैट इज अल्टीमेटली कंसिडर्ड अ नोटिस ऑफ 73 ओनली. एंड उसके लिए टाइम लिमिट भी अलग है. सो अभी हम जैसे डिस्कस करेंगे कि पेमेंट की टाइम लिमिट 31 मार्च है, बट इन दिस केस वेयर द ऑर्डर वाज इशूड इन 74 एंड रीअसेस्ड इन 73, इस केस में टाइम लिमिट होगी 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेस्ड ऑर्डर. तो जब ऑफिसर 73 में उस ऑर्डर को रीअसेस करेगा, उस डेट से 6 महीने कंसिडर करेंगे फॉर डेट ऑफ पेमेंट एज वेल एज डेट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन इन SPL 02. एंड वंस यू हैव गॉटन द रिलीफ, आपका SPL 05 में फाइनल ऑर्डर आ गया है, नो अपील कैन बी फाइल अगेंस्ट दैट ऑर्डर बाय द डिपार्टमेंट और बाय द टैक्स पेयर. So I think this we have discussed. So now the most important point, ड्यू डेट फॉर पेमेंट. तो मार्केट में भी काफी कंफ्यूजन है दैट वेदर द ड्यू डेट इज 31 मार्च और 30 जून. So the due date for making tax payment, if you want to avail the benefit of amnesty scheme, the due date to make tax payment is 31st March. Tax payment आप 31st March तक कर दीजिए. After that, you will get another 3 months to file the application form. तो जो भी आपको SPL 01 फाइल करना है, SPL 02 फाइल करना है, that you can file till 30th June. But tax payment has to be made before 31st March. और अगर आपने किसी ऑर्डर के अगेंस्ट यू वांट टू गो फॉर एमनेस्टी एंड यू हैव फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर, देन यू हैव टू विथड्रॉ दैट अपील. So the application for withdrawal of that appeal, that application also has to be made before 31st March. Otherwise, you will not be eligible for the benefit of this amnesty scheme. तो ये दो चीजों के लिए डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर विड्रॉवल ऑफ अपील अगेंस्ट द ऑर्डर फॉर विच यू वांट टू गो इन द एमनेस्टी स्कीम. तो दिस वे कवर्ड एरोनियस रिफंड इसमें कवर नहीं है. 1920 के बाद का कोई फाइनेंशियल ईयर कवर्ड नहीं है. ऑलरेडी आपने कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी पे कर दिया है, उसका रिफंड नहीं मिलेगा अंडर दिस स्कीम. नाउ अनकवर्ड लायबिलिटी. सो अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो अब लेट से आपका कोई एक शो कॉज आया मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर का, उसमें आपका 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 चार फाइनेंशियल ईयर कवर्ड है. बट आप एंड यू वांट टू गो फॉर एमनेस्टी, बट एमनेस्टी में आपके 3 इयर्स ही कवर्ड है. फाइनेंशियल ईयर 2021 इज नॉट कवर्ड इन दैट एमनेस्टी स्कीम. So what will happen now? So GST law says that you for a particular SCN or for a particular order, you know, having two different treatment is not allowed. या तो आप पूरे ऑर्डर के लिए लिटिगेट करो या आप पूरे ऑर्डर के लिए एमनेस्टी में जाओ. तो अगर आप एमनेस्टी में जा रहे हो तो ये अलाउड नहीं है कि आप 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए तो एमनेस्टी अप्लाई कर दो 17, 18 टू 19, 20 और 2021 के लिए आप लिटिगेट कर लो. दैट इज नॉट अलाउड. इफ यू वांट टू गो फॉर एमनेस्टी, गो फॉर द कंप्लीट ऑर्डर. सो इफेक्टिवली व्हाट विल हैपन इज फाइनेंशियल ईयर 2021 की जितनी भी टैक्स की डिमांड है प्लस जो भी इंटरेस्ट है प्लस जो भी पेनल्टी है 2021 के लिए आपको सब पे करना पड़ेगा क्योंकि दैट इज नॉट कवर्ड इन एमनेस्टी. So for 17, 18 to 19, 20, pay the tax amount, interest and penalty will be waived off. 2021 के लिए टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी आप सब कुछ पे कर दीजिए. ओनली देन योर बेनिफिट विल बी गिवन इन द एमनेस्टी स्कीम. अदरवाइज आपका 17, 18 टू 19, 20 का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा. देर इज अ टाइम लिमिट फॉर दैट. सो जो आपको इंटरेस्ट पेनल्टी पे करनी है वो राइट अवे पे नहीं करनी. यू कैन ओनली पे द टैक्स अमाउंट राइट नाउ बिफोर 31st March.
देन आपका SPL 05 में जब एक्सेप्टेंस ऑर्डर इशू होगा, उस एक्सेप्टेंस ऑर्डर में ऑफिसर 2021 से पर्टेनिंग जो भी इंटरेस्ट और पेनल्टी होगा वो अमाउंट को नोटिफाई कर देगा, एंड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम दैट SPL 05 और SPL 06 यू कैन पे द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अमाउंट। बट अगर आपने विद इन 3 मंथ्स उसको पे नहीं किया, देन योर एमनेस्टी स्कीम बेनिफिट विल बी कंसिडर्ड नल एंड वॉइड। तो आप उसको जितना जल्दी पे कर देंगे, मैक्सिमम विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम SPL 05 और SPL 06, then your amnesty relief will be available. पेमेंट ऑफ डिमांड, तो पेमेंट कैसे करना है? अगर SCN के अगेंस्ट है देन यू हैव टू फाइल DRC 03। अगर ऑर्डर के अगेंस्ट है देन यू हैव टू पे लाइबिलिटी थ्रू पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड ऑप्शन। अगर आपने DRC 3 से पेमेंट कर दिया देन यू हैव टू फाइल DRC 3A ऑन पोर्टल। ये एक नॉर्मल एडवाइजरी पहले भी आई थी। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी नोटेड कि पेमेंट जो हमें 31 मार्च से पहले करनी है। तो सिर्फ ई कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट करना विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन पेमेंट। तो या तो आपको ई लाइबिलिटी लेजर में देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड, जहाँ पे आप ऑर्डर रेफरेंस नंबर सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हो। सो आइदर यू पे थ्रू दैट ऑप्शन और यू फाइल DRC 3 एंड DRC 3A। तो अगर आप पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड वाले ऑप्शन से कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है। अगर आप DRC 3 एंड 3A वाले ऑप्शन से कर रहे हो तो ड्यू डेट ऑफ 31 मार्च इज फॉर फाइलिंग ऑफ DRC 3। तो DRC 3 आपको 31 मार्च से पहले फाइल करना पड़ेगा। DRC 3A आप 31 मार्च के बाद भी कर सकते हो, बिफोर फाइलिंग ऑफ SPL 01 और SPL 02। मतलब जून से पहले पहले आप DRC 3A फाइल कर सकते हो, लेकिन DRC 3 आपको 31 मार्च से पहले फाइल करना पड़ेगा। Next issue is whether it has to be paid through e-cash ledger only or e-credit ledger can be used. So there is no restriction in GST law। आप दोनों में से कोई भी e-cash या e-credit जो आप यूज करना चाहो आप वो यूज कर सकते हो। But obviously if there is some RCM payment, some 95 payment or some erroneous refund payment which was originally paid in cash, so for those kind of payments you need to pay in cash only. But otherwise for all normal payments you can use e-cash ledger or e-credit ledger, whichever the client chooses। देन अपील्स, सो कोई भी ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट यू वांट टू गो फॉर एमनेस्टी एंड द टैक्स पेयर हैज ऑलरेडी फाइल्ड एनी अपील और रिट पिटीशन और स्पेशल लीव पिटीशन बिफोर द कोर्ट्स, देन दे नीड टू विड्रॉ दैट एप्लीकेशन बिफोर फाइलिंग द एमनेस्टी स्कीम बेनिफिट। सो दे इसमें गवर्नमेंट ने लिमिटेड रिलीफ दी है कि विड्रॉल ऑर्डर इज नॉट रिक्वायर्ड इन द बिगनिंग। स्टार्टिंग में यू कैन जस्ट गिव एन एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल and you can give proof of that application for withdrawal in your amnesty scheme application, but that application has to be made before 31st March if you want to avail this benefit। Then this is just we have put some screenshots to show कि कैसे कैसे आपको पोर्टल पे SPL 01 SPL 02 दिखेगा। तो या ऐसे डैशबोर्ड में यू गो टू सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, माय एप्लीकेशन, देयर यू विल फाइंड अ स्पेसिफिक ऑप्शन फॉर एप्लीकेशन फॉर वेवर स्कीम अंडर 128A। यहाँ पे SPL 01 02 सेपरेट ऑप्शन दिख जाएंगे। दिस इज सम क्वेश्चन यू हैव टू फिल, demand order issued through GST portal, whether any appeal has been filed, application for appeal, withdrawal has been filed, whether any writ petitions have been filed। So all these questions you have to fill, basis that your form for filing will get generated। तो इसमें जैसे अब SPL 02 में आपको यू हैव टू सेलेक्ट द ऑर्डर रेफरेंस नंबर। तो SPL 02 में, SPL 01 में you have to select the SCN number, SPL 02 में you have to select the order reference number, so date of issuance, section under which it was issued, all of it will get auto populated। उसके बाद whether any appeal has been filed, so बाकी डिटेल नॉर्मल डिटेल्स हैं, there is not too much details। तो नॉर्मल डिटेल्स रिक्वायर्ड है। then you have to upload a self certified copy of the order or the SCN, proof of withdrawal of appeal अगर अपील फाइल हो चुकी है, एंड देन पे प्रूफ ऑफ पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड। सो जो भी आपने पेमेंट की है, इफ यू हैव पेड थ्रू DRC 3 एंड 3A, देन यू हैव टू अपलोड द प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑल्सो। नाउ एक प्रैक्टिकल इसमें काफी बड़ा चैलेंज आता है। So a lot of taxpayers have received orders where only the interest and penalty amount is there। तो लेट्स से किसी को सिर्फ 125 की पेनल्टी का नोटिस आ गया, या किसी पर्सन ने टैक्स पेमेंट तो कर दी, तो डिपार्टमेंट ने उसको सिर्फ इंटरेस्ट का शो कॉज नोटिस दे दिया। सो
उस केस में सर्कुलर 238 वॉज इशूड रिसेंटली, जिसने क्लैरिफाई किया कि उस केस में आपको बेनिफिट मिल जाएगा इफ ओनली इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी डिमांड इज देयर, then also you can get benefit of the amnesty scheme, and basically you don't have to pay anything because there is no tax demand. तो प्रैक्टिकली नाउ व्हाट द चैलेंज इज कमिंग कि जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यू हैव टू गिव प्रूफ ऑफ पेमेंट, बट इन दिस केस देयर इज नो प्रूफ ऑफ पेमेंट बिकॉज देयर इज नो पेमेंट, कोई टैक्स डिमांड ही नहीं थी ऑर्डर के अंदर. So in this case, what you can do is you can write a one-pager letter explaining your case, giving reference of section 128A and circular number 238, and you can upload that signed copy of that letter in this option. Then some undertakings you have to give when you are filing the SP02 form. So in this, we also created one small flow chart to easy understand the process. So you have to file SPL01 for show cause notice, SPL02 for orders. Then department has to decide on your application within 3 months. So अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो SPL05 इशू हो जाएगा, रिजेक्ट करेगा तो SPL03 इशू हो जाएगा. अगर कोई भी एक्शन नहीं लेगा देन इट विल बी डीम्ड टू बी अप्रूव्ड. अगर अप्रूवल आ गया SPL05 में, इट इज कंसिडर्ड फाइनल, नो अपील कैन बी फाइल्ड. बट अगर SPL03 आता है, दैट इज अ शो कॉज नोटिस. So department will give you a proper hearing. They will give you a chance to reply in SPL04 within 1 month from SPL03. So taxpayer can give their reply. They can also go and have a hearing if they want. So अगर reply department को satisfactory लगा, then again they can approve it under SPL05. But if they don't find the reply satisfactory, then they can reject it under order as in rejection order under SPL07. So SPL07 is just like any normal order under GST law. So you can file appeal against that order in APL01. And अगर APL01 में आपका accept हो जाता है, then department will issue approval this time in SPL06. अभी तक SPL05 में हो रहा था, इस केस में SPL06 में होगा. और अगर डिपार्टमेंट अपील रिजेक्ट करता है देन दे विल इशू इट इन APL04. तो उसके अगेंस्ट नॉर्मल ऑर्डर है. तो फर्स्ट अपील में इफ यू गेट रिजेक्टेड देन यू कैन गो टू ट्राइब्यूनल, देन टू हाई कोर्ट, देन टू सुप्रीम कोर्ट. तो जो भी नॉर्मल ऑर्डर्स में प्रोसेस यूज होता है, सेम प्रोसेस विल बी एप्लीकेबल टू दिस ऑर्डर अंडर एमनेस्टी स्कीम ऑल्सो. Then circular number 238 was also issued with some very important clarification. तो फर्स्ट थिंग विच इट क्लैरिफाइड कि अगर आपने टैक्स पेमेंट, ये स्कीम नोटिफाई होने से भी पहले भी आपने टैक्स पेमेंट कर दी, मतलब जो आपको पता भी नहीं था कि कोई एमनेस्टी स्कीम है, इवन देन इफ यू मेड द टैक्स पेमेंट देन आल्सो दैट इज एलिजिबल फॉर द एमनेस्टी स्कीम. सेकंड इज अगर सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी का नोटिस है तो भी अवेलेबल है, दिस वी हैव डिस्कस. अगर कुछ इश्यूज कवर्ड हैं, कुछ इश्यूज कवर्ड नहीं है, तो बेसिकली अनकवर्ड इश्यूज के लिए या नॉन कवर्ड इश्यूज के लिए यू हैव टू पे द कंप्लीट tax interest and penalty to get the benefit. Now this is very important. So let's say मैं एक टैक्स पे मोहित गुप्ता को एक शोकॉज नोटिस मिला, उसमें दो अलग अलग इशूज थे. एक इशू 1 में 200 रुपीज की डिमांड थी, इशू 2 में 300 रुपीज की डिमांड थी, टोटल 500 की डिमांड थी. जब शोकॉज का एडजुडिकेशन हुआ, ऑर्डर आया, तो डिपार्टमेंट ने एक 200 रुपीज वाली डिमांड कंफर्म कर दी, 300 रुपीज वाली डिमांड ड्रॉप कर दी. तो मैं जो 200 की कंफर्म हुई, मैंने उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर दी. डिपार्टमेंट ने जो 300 की डिमांड ड्रॉप हुई है, डिपार्टमेंट ने उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर दी, बिकॉज डिपार्टमेंट आल्सो हैज अ राइट टू फाइल अपील अगेंस्ट हिज ओन ऑर्डर्स. तो आज की डेट में वो दोनों अपील पेंडिंग है, 200 रुपए की भी, 300 रुपए की भी. नाउ आई वांट टू गो फॉर एमनेस्टी स्कीम. सो ऑर्डर ने डिमांड तो 200 की कंफर्म किया, तो आई गो अंडर एमनेस्टी फॉर दैट 200 रुपीज ओनली एंड आई विड्रॉ माई अपील. तो अपनी अपील विड्रॉ करूंगा एंड आई फाइल फॉर द एमनेस्टी स्कीम. नाउ व्हाट द जीएसटी लॉ सेज इज, जो 300 रुपए की डिमांड के अगेंस्ट, डिमांड ड्रॉप के अगेंस्ट डिपार्टमेंट ने अपील फाइल की हुई है, if that appeal is rejected by the first appellate authority then there is no issue. तो 200 रुपए मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका हूँ फॉर द एमनेस्टी स्कीम, 300 रुपए की डिमांड डिसमिस हो गई है फाइनली, तो देर इज नो प्रॉब्लम, द स्कीम बेनिफिट इज अवेलेबल. बट in case that 300 demand which was earlier dropped and later on it is confirmed on department's appeal, तो मुझे वो 300 रुपीज भी पे करने पड़ेंगे विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर. तो जब भी उस appellate authority का फाइनल ऑर्डर आएगा, विद इन 3 months फ्रॉम दैट ऑर्डर आई हैव टू पे दैट 300 रुपीज ऑल्सो
Otherwise, the benefit of amnesty scheme will not be available even for the 200 rupees which I earlier paid. Then Tran 1 के लिए this scheme is applicable if the credit involved in Tran 1 was credited to e-credit ledger on or before 31st March 2020. Import IGST is not covered because वो customs law में govern होता है. एंड DRC 3 अगर आपने 31 मार्च से पहले फाइल कर दिया, 3 बाद में फाइल हुआ, दैट इज कवर्ड, दैट वी हैव डिस्कस्ड. और अगर टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी रिकवर नहीं कर लिया, किसी और पार्टी से कर ली, आपका टैक्स किसी और से रिकवर कर लिया, आपके बैंक अकाउंट को अटैच करके कर लिया, आपकी कोई प्रॉपर्टी बेच के कर लिया, आपके क्रेडिटर्स डेटर्स किसी से कर लिया बिफोर 31st March, दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन द स्कीम. यू कैन ऑल्सो गो एंड टेक amnesty in that case. So they have a separate option on GST portal called issues related to waiver scheme. So अगर आपको कोई भी technical issue आ रहा है, you can go and file a grievance under this option. तो आपको थोड़ा faster resolution मिलेगा as compared to normal queries. Restoration of appeal. So this is again a very important point. So let's say किसी taxpayer ने amnesty scheme में application file की and that application is rejected, और उस taxpayer ने उस एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए अपनी ओरिजिनली अपील विड्रॉ की थी मार्च में. मुझे मेरे पास एक ऑर्डर आया फेब में, मार्च में मैंने उसके अगेंस्ट अपील फाइल की. देन आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू गो फॉर एमनेस्टी स्कीम. तो मैंने अपील विड्रॉ कर ली, आई वेंट फॉर एमनेस्टी स्कीम, एंड एमनेस्टी स्कीम में मेरा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन. एंड नाउ आई डोंट वांट टू गो फॉर द एमनेस्टी स्कीम. रिजेक्ट होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ओरिजिनल मेरिट्स पे इसको लिटिगेट करना चाहता हूँ. सो देन माई ओरिजिनल अपील विच वॉज विड्रॉन, दैट विल बी रिस्टोर्ड. बट इसके लिए प्रैक्टिकली टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू शुड नोट. तो जब भी आप अपील विड्रॉल की एप्लीकेशन डालते हैं, दीज टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू नीड टू मेंशन इन द अपील विड्रॉल एप्लीकेशन. तो फर्स्ट इज यू हैव टू मेंशन क्लियरली दैट वी वांट टू गो फॉर एमनेस्टी स्कीम, दैट इज व्हाई वी आर विड्रॉइंग द अपील. Second, if our application under amnesty scheme is rejected, then we reserve the right to restore our appeal. इवन तो ये टैक्स जीएसटी लॉ में ये दोनों मतलब दोनों चीजें क्लियरली मेंशन्ड है. बट इफ यू मेंशन दिस ऑन योर अपील विड्रॉल एप्लीकेशन ऑल्सो, योर केस बिकम्स अ लिटिल बिट इजियर इन केस योर in future your application in amnesty scheme is rejected. बट जहाँ पे अपील फाइल ही नहीं हुई, सो लेट्स से अप्रैल फेब में मुझे ऑर्डर मिला, मार्च में आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू गो फॉर एमनेस्टी स्कीम, सो मैंने अपील फाइल ही नहीं की. तो देन व्हाट विल हैपन, जीएसटी लॉ इज कंप्लीटली साइलेंट. क्योंकि जहाँ अपील फाइल करके विड्रॉ हो गई, वहां तो जीएसटी लॉ बोलता है दैट अपील विल बी रिस्टोर्ड. बट जहाँ अपील फाइल ही नहीं हुई, देयर इज नो प्रोविजन इन जीएसटी व्हिच डील्स विद दिस सिचुएशन. So in this case, what I'll practically suggest is you file the appeal first and then file a withdrawal application before 31st March and then go for the amnesty scheme. Because then at least your original appeal will get restored if there is any problem in the amnesty scheme. Then so it only covers the orders or SCN issued under section 73. तो अगर आपका कोई ई वे बिल का नोटिस या ऑर्डर इशूड है अंडर 129, कोई कॉन्फिस्केशन का इशूड है अंडर सेक्शन 130, तो वो सारे नोटिसेस एमनेस्टी स्कीम में कवर्ड नहीं है. So I think these are the issues related to the amnesty scheme. So I think we can take one or two queries, then we will quickly discuss ISD provisions also in 5-10 minutes. And yes, then we can conclude. So if any participants have any queries, maybe 2-3 queries we can take, and then quickly we will finish the ISD cross charge provisions also. Okay. मोहित जी, जी सर. आ, मैं ले लेता हूँ. कई सारी क्वेरी आई थी, क्विकली कवर कर लें. यू हैव टू लीव. हाँ सर. ओके ओके ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट. कहाँ से सर? नोटिस, just a notice was issued to my client under section 74 and we went to appeal. Now
The authority has reassessed under Section 73. Now I'm applying for waiver scheme, but on the portal it is being now on the portal it is being auto-populated that the order has been passed under Section 74. What to do, sir? देखिए ऐसे टेक्निकल इश्यूज पोर्टल पे काफी आ रहे हैं. So that is why government also issued another press release on 21st March saying that अगर पोर्टल पे आपको कोई भी टेक्निकल इशू आ रहे हैं तो अभी आप टैक्स पेमेंट कर दीजिए बिफोर 31st मार्च. एंड जो भी टेक्निकल इशू है आप यू कैन रेज अ ग्रीवियंस फॉर दैट. एंड दैट विल प्रोबेबली बी रिजॉल्व्ड इन 1 मंथ और 2 मंथ्स. सो बिफोर 30th जून वो रिजॉल्व कर देंगे उसको. देन यू कैन प्रोसीड विद फाइलिंग फॉर SPL 02. बट टैक्स पेमेंट आप 31st मार्च से पहले कर दीजिए. Second one is there any clarification on the GST implications for ITC? Specifically, do we need to trace the filing of GSTR 3B for each vendor to ensure the ITC is not being allowed? ये सर. सो रूल 37A इज वेरी क्लियर कि अगर आपके वेंडर ने 1 फाइल किया है 3 भी फाइल नहीं किया देन सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक का टाइम देता है वो कि सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक भी वो फाइल कर देगा तो कोई इशू नहीं है. बट उसने तब तक भी फाइल नहीं किया देन यू हैव टू रिवर्स योर ITC which you can reavail after he files his GST application. Next one is what is the correct basis of GST ITC distribution in ISD registration? Should it be based on the last month turnover as reported in the GST return of each branch, or it should be based on the last year turnover as per the GST return? तो वैसे तो अभी ISD में हम कवर करने वाले थे इसको बट एक क्वेश्चन अब आ गया है तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. जी. तो ISD के लिए जो आपको टर्नओवर लेना होता है दैट इज टेकन फॉर रेलेवेंट पीरियड. अब रेलेवेंट पीरियड का क्या मतलब है? सो नॉर्मली दैट मीन्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर. तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो भी GST रिटर्न में आपका रिपोर्ट हुआ है बट करेक्ट टर्नओवर. मतलब GST रिटर्न में आपने कोई गलती कर दी तो आपको गलती का इफेक्ट करेक्ट करना पड़ेगा. सो करे GST रिटर्न टर्नओवर एज पर लास्ट ईयर. इन केस लेट से आपने इस साल कोई नया रजिस्ट्रेशन ले लिया जो आपका लास्ट ईयर एग्जिस्ट ही नहीं करता था. तो इन दैट केस यू हैव टू टेक टर्नओवर फॉर द लास्ट अवेलेबल क्वार्टर. मतलब वो लास्ट क्वार्टर जिसमें आपका सारी ब्रांचेस का रजिस्ट्रेशन टर्नओवर अवेलेबल था. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेलेवेंट पीरियड. सो नॉर्मली लास्ट फाइनेंशियल ईयर अगर कोई पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नहीं था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देन लास्ट अवेलेबल क्वार्टर. Okay. Next query is order passed by proper officer is rupee 10 lakh. We have paid pre-deposit 10% is rupee 1 lakh. Order passed by appeal is rupee 20,000 only. Whether we have to pay tax rupee 20,000 and claim the refund of pre-deposit of rupee 1 lakh. सो जो आपने 1 लाख यू हैव ऑलरेडी पेड 20,000 यू कैन adjust for the amnesty scheme and balance 80,000 you can claim for refund if you want to go for amnesty scheme. Okay. Can GST office issue ASMT 10 after concluding of GST audit for the same financial year? तो ये आज के डेट में दैट इज अ वेरी बिग लिटिगेशन व्हिच इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री. तो जो अभी वेरियस कोर्ट्स की जजमेंट्स आई हैं दैट ऑन सेम सब्जेक्ट मैटर. सो सब्जेक्ट मैटर मींस सेम फाइनेंशियल ईयर एंड सेम इशू पे दो प्रोसीडिंग नहीं हो सकती. तो अगर आपका ऑडिट हो चुका है Okay. बट सेम फाइनेंशियल ईयर का कोई और इशू के ऊपर AS-10 आ सकता है जो अभी तक की जजमेंट्स हैं. बट अगेन इसमें भी बहुत चैलेंजेस आज की डेट में चल रहे हैं तो हो सकता है 1 साल बाद 2 साल में थोड़ी और क्लैरिटी इस पॉइंट के ऊपर आ जाए. सर लास्ट टू क्वेरी लेते हैं. एक इफ द सप्लायर इनवॉइस कंटेन अवर बिलिंग एड्रेस दिल्ली and but the goods are supplied in Maharashtra, second buyer is in Maharashtra, would the GST be allowed, disallowed? GST ITC be disallowed?
नहीं सर, इसके लिए स्पेसिफिकली देयर इज एक्सप्लेनेशन इन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, जो कहते हैं कि ऐसे बिल टू शिफ्ट के केसेस में बिल टू वाली पार्टी को क्रेडिट मिल जाएगा इवन इफ ही हैज नॉट फिजिकली रिसीव्ड द गुड्स। The last query is for availing benefit under section 16(5). Then it is necessary that so-called notice we have received mentioned ITC not available due to 16(4). हाँ सर, दिस हैज टू बी मेंशन्ड इन द शो कॉज नोटिस दैट आईटीसी Okay. इज बीइंग डिसअलाउड बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट अंडर Hmm. सेक्शन 16(4). अगर 16(4) मेंशन नहीं है देन 16(5) का बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल। Okay. So with this we have completed all the queries, Moiji. And maybe 5-10 minutes में will cover the ISD provisions also, and then okay, we can okay, continue. you can please. So, ISD again. So ISD versus cross chart. This is also a controversy जो in 2018 में start हुई थी when Columbia Asia Apple ट्रिपल AR came। तब से क्रॉस चार्ज की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। देन 2022 2023 में थोड़ा ज्यादा इस कंट्रोवर्सी बड़ी बन गई। देन गवर्नमेंट केम आउट विद अ सर्कुलर नंबर 199, विच बेसिकली सेड कि आप आईएसडी या क्रॉस चार्ज दोनों में से कुछ भी कर दो, बोथ आर एक्सेप्टेबल, दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वट एवर यू डू इज फाइन। बट नाउ फ्रॉम 1 April 2025 नाउ दे हैव मेड द आईएसडी प्रोविजंस मैंडेटरी। तो अब से आईएसडी करना मैंडेटरी हो गया। बट डज दैट मीन कि अब से क्रॉस चार्ज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया? तो यहाँ बहुत सारे इश्यूज हैं। तो स्टिल द लॉ इज वेरी वेरी अनक्लियर, बट जो भी अभी जितनी क्लैरिफिकेशन है, जितने इश्यूज हैं, हम उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज आईएसडी। सो सिंपली अबाउट आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मींस कि जहाँ पे एक एंटिटी के मल्टीपल जीएसटी नंबर है, मतलब दो या दो से ज्यादा जीएसटी नंबर हैं, दो या दो से ज्यादा ऑफिसेज हैं, और वो कोई ऐसी सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं जो मल्टीपल ऑफिस में यूज होती है। तो लेट्स से किसी ने स्टॉक ऑडिट की सर्विस रिसीव की, तो स्टॉक ऑडिट तो सारे ब्रांचेस में पड़ा हुआ है, सारे ब्रांचेस में जाके किसी पर्सन ने स्टॉक ऑडिट करके उसको रिपोर्ट दी है। तो दैट सर्विस इज यूज बाय ऑल द लोकेशंस। या फिर लेट्स से कोई सॉफ्टवेयर वो कंपनी यूज कर रही है, तो दैट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन ऑल द ऑफिसेज थ्रू आउट इंडिया। तो दैट सर्विस इज यूज बाय मल्टीपल जीएसटी नंबर। सो आईएसडी का कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं दैट व्हेन एनी सर्विसेज आर रिसीव्ड व्हिच इज कंज्यूम्ड व्हिच pertains to more than one location, more than one GST number, then the entity has to get a separate registration called as ISD। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है XYZ, उनका दिल्ली के अंदर हेड ऑफिस है और उनके मल्टीपल ब्रांचेस हैं। उनका हरियाणा में भी एक ब्रांच है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, बैंगलोर में भी है, कर्नाटका में। तो ऐसे 4-5 अलग अलग स्टेट में उनके ब्रांच ऑफिस हैं। अब जो भी वो कॉमन सर्विसेज ऐसे रिसीव कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज, स्टॉक सर्विसेज, ऑडिट सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, टैक्स ऑडिट की सर्विस, टैक्स की कंसल्टेंसी की सर्विस, कोई केस आ गया उसके लिटिगेशन की सर्विस। तो ऐसी जितनी सर्विस जो सारी ब्रांचेस को या पूरी एंटिटी को एज अ होल पर्टेन करती हैं, वो सारी सर्विसेज के लिए दिल्ली यूनिट को, एक जहाँ हेड ऑफिस है वहां उनको एक सेपरेट आईएसडी नंबर लेना पड़ेगा। वो सारी सर्विसेज आईएसडी नंबर पर रिसीव होंगी एंड दैट यूनिट विल डिस्ट्रीब्यूट ऑल दिस सर्विसेज टू ऑल द जीएसटी नंबर थ्रू आउट इंडिया इन द रेशियो ऑफ द टर्नओवर। टर्नओवर हमें कौन सा लेना है? रेलेवेंट पीरियड का, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि रेलेवेंट पीरियड लास्ट फाइनेंशियल ईयर और लास्ट अवेलेबल क्वार्टर इफ टर्नओवर इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द यूनिट्स इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो जितना भी एक्सपेंस या कोई भी सर्विसेज रिलेट्स टू मल्टीपल जीएसटी नंबर, देन यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स आईटीसी थ्रू आईएसडी नंबर। अब इसमें चैलेंज कहाँ आता है? सबसे पहला चैलेंज आता है आईएसडी वर्सेस क्रॉस चार्ज। तो आईएसडी सिर्फ वो सर्विसेज को कवर करता है जो आपकी सारी ब्रांचेस में यूज हुई है। तो अब लेट अस टेक एन सिंपल एग्जांपल, जो दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है, सो उस हेड ऑफिस की खुद की कोई बिलिंग नहीं है, वो बस हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस है जहाँ पे हमारे सारे अकाउंट्स, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, डायरेक्टर, सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट, वहाँ पे ये सब लोग बैठते हैं। बट वहाँ से कोई स्टॉक सेल नहीं होता, तो वहाँ कोई डायरेक्ट बिलिंग नहीं है कंपनी की।
अब लेट से एचओ के और भी खर्चे हैं, एचओ का रेंट है, एचओ की ऑफिस मेंटेनेंस है, हेड ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयज बैठे हैं, उनका लैपटॉप है, उनका एम्प्लॉय रिलेटेड फूड एंड बेवरेज के एक्सपेंस हैं, उनकी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के एक्सपेंस हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो एचओ के अंदर हो रहे हैं. नाउ वी कैन नॉट से दैट दीज एक्सपेंसेस परटेन्स टू ऑल द ब्रांचेस, क्योंकि वो बाकी ब्रांचेस में कंज्यूम नहीं होते, कंज्यूम तो हेड ऑफिस के अंदर होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो ब्रांच के लिए यूज हो रहे हैं, क्योंकि हेड ऑफिस की खुद की तो कोई बिलिंग है नहीं. हेड ऑफिस बेसिकली बाकी सारे ब्रांचेस को सपोर्ट कर रहा है, उनके बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है. मतलब इफ वी टेक द डीमिंग फिक्शन ऑफ द जीएसटी, कि एवरी जीएसटी नंबर इज अ सेपरेट पर्सन, तो हेड ऑफिस अगर एक डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो हेड ऑफिस अपने जो बाकी डिस्टिंक्ट पर्सन है, बाकी ब्रांच यूनिट्स हैं जो सेल कर रही है, हेड ऑफिस इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट एक्टिविटीज टू दोज जीएसटी नंबर्स, टू दोज ब्रांच यूनिट्स. तो जो कोलंबिया एशिया की एडवांस रूलिंग आई थी, बट दैट एडवांस रूलिंग ट्रिपल एआर बेसिकली स्टेट इज कि that will be considered deemed to be a support service between distinct person, and even if there is no consideration that will be taxable under GST. मतलब वो डीम कर लेंगे, हेड ऑफिस ने एक सपोर्ट सर्विस दी है, बिजनेस सपोर्ट सर्विस ब्रांच ऑफिस को, और दिल्ली हेड ऑफिस को अपने हर ब्रांच ऑफिस को एक जीएसटी इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, और उसके ऊपर जीएस बिजनेस सपोर्ट सर्विस का जीएसटी इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, और उस पर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा. So that concept is still valid even after ISD has become mandatory, because ISD सिर्फ वो सर्विसेज को कवर करेगा जो सारे ब्रांचेस में कंज्यूम होती हैं. तो सॉफ्टवेयर, स्टॉक ऑडिट, नॉर्मल टैक्स ऑडिट, स्टैट ऑडिट, अकाउंटिंग, लिटिगेशन, ऑल दीज काइंड ऑफ सर्विसेज. बट जो सर्विसेज हेड ऑफिस के अंदर कंज्यूम होती हैं, so रेंट, ऑफिस मेंटेनेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एनी काइंड ऑफ गुड्स, बिकॉज आईएसडी में गुड्स भी कवर नहीं होते, आईएसडी इज ओनली फॉर services, so ISD does not cover goods also, so any kind of goods, so these are not covered by ISD. So legally speaking these gets covered under cross charge. So अब प्रैक्टिकली क्या होगा कि सारे बिजनेसेस को जिनके भी दो या दो से ज्यादा जीएसटी नंबर हैं, दे हैव टू फॉलो आईएसडी एज वेल एज क्रॉस चार्ज. सो आईएसडी के लिए तो खैर ज्यादा कंप्लायंस है, आईएसडी के लिए दे हैव टू गेट अ सेपरेट जीएसटी नंबर, दे हैव टू issue a ISD separate type of ISD invoice, distribute the ITC. क्रॉस चार्ज के लिए सेपरेट जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ेगा, नॉर्मल रेगुलर जीएसटी नंबर से कंप्लायंस हो जाएगा. बट नो, प्रैक्टिकली दैट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग. क्या होगा, आपको हर महीने जब भी आपका परचेज रजिस्टर बनेगा, आईटीसी रजिस्टर बनेगा, एवरी मंथ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि अच्छा ये सर्विसेज ब्रांचेस में कंज्यूम हुई है तो इसको आईएसडी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सर्विस क्रॉस चार्ज के थ्रू कंज्यूम हुई, मतलब ये हेड ऑफिस में कंज्यूम हुई है तो उसको क्रॉस चार्ज करते हैं. और वो आपको बिफोर मंथ डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके वेंडर्स हैं, आपको वेंडर्स को अपने जीएसटी नंबर भी देना है. जो आईएसडी वाले वेंडर्स हैं उनको आप आईएसडी वाला जीएसटी नंबर दोगे, जो आपके क्रॉस चार्ज वाले वेंडर हैं, एचओ रिलेटेड वेंडर है, उनको आप एचओ का नॉर्मल जीएसटी नंबर दोगे. तो दिस इज अ वेरी बिग कंफ्यूजन. तो अभी भी इसमें क्या करना है, कैसे करना है, कोई क्लैरिटी नहीं है. बट यस, जितना आईएसडी की सर्विसेज है, आईएसडी के लिए तो मैंडेटरी यू हैव टू फॉलो द आईएसडी प्रोविजन, सो टेक आईएसडी रजिस्ट्रेशन, start distributing the ITC from April onwards. जितना क्रॉस चार्ज रिलेटेड प्रोविजंस है, क्रॉस चार्ज के लिए देयर इज अ लिमिटेड रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ सेकंड प्रोवाइजो टू रूल 28, कि अगर आपके बिजनेसेस को फुल आईटीसी अवेलेबल है, मतलब आपकी कोई एग्जाम सप्लाईज नहीं है, तो उसमें बेसिकली आप कोई भी वैल्यू का क्रॉस चार्ज कर दो, कोई भी वैल्यू का सपोर्ट सर्विस का इनवॉइस कर दो, दे विल अज्यूम इट टू बी करेक्ट. कि अगर आपने 100 रुपए का भी एक रैंडम इनवॉइस रेज कर दिया, तो जीएसटी डिपार्टमेंट विल अज्यूम दैट ये करेक्ट इनवॉइस है. But that is only applicable. I think Prashant ji has sent a message that voice is not coming. Am I audible to everyone? Yes, yes. Okay. Thank you, Gupta ji. So, what I was saying is, क्रॉस चार्ज के लिए एक लिमिटेड रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि इन टर्म्स ऑफ सेकंड प्रोविजो टू रूल 28, that if full ITC is eligible, that means we do not have any exempt supplies, then any value which is mentioned on the invoice is deemed to be the market value. मतलब आप 100 रुपए का भी इनवॉइस रेज करोगे तो डीएसटी डिपार्टमेंट विल अज्यूम दैट दैट 100 रुपीज वैल्यू इज करेक्ट, दे विल नॉट क्वेश्चन द वैल्यू. बट जहाँ पे कहीं एग्जाम सप्लाईज आ जाएंगी, देन दैट विल बिकम अ वेरी गुड, वेरी बिग चैलेंज फॉर द कंपनी, बिकॉज फिर उनको प्रॉपरली आईएसडी और क्रॉस चार्ज की अलग अलग वर्किंग्स मेंटेन करनी पड़ेगी.
सेकंड बिग इशू इज आरसीएम, कि आरसीएम की कोई पेमेंट है। अब लेट्स से आपने लीगल कंसल्टेंसी की सर्विस ली है किसी बिजनेस ने एडवोकेट से, या जीटीए की सर्विस ली है, उन्होंने बेसिकली एक जीटीए सर्विस, जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को हायर किया है, और वो पैन इंडिया जितना ट्रांसपोर्टेशन करते हैं सारे ब्रांचेस का, वो सिंगल बिल दे देते हैं मंथली बेसिस पे या फोर्टनाइटली बेसिस पे। नाउ, अब वो केसेस में टैक्स पेमेंट कैसे होगा, क्योंकि आईएसडी रजिस्ट्रेशन कैन नॉट डू एनी टैक्स पेमेंट। आईएसडी में आपका सेपरेट एक जीएसटी या 6 फाइल होता है, तो 6800 होता है, 6 फाइल होता है, उससे आप आरसीएम कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं कर सकते। तो दे हैव गिवन अ स्पेशल प्रोसीजर कि पहले आप जो नॉर्मल जीएसटी नंबर है उस स्टेट का, आप उसमें आरसीएम की पेमेंट कीजिए, देन यू इशू अ टैक्स इनवॉइस फ्रॉम दैट रेगुलर जीएसटी नंबर टू द आईएसडी जीएसटी नंबर, और फिर आप आईएसडी जीएसटी नंबर से उस टैक्स इनवॉइस का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। और आईएसडी से आपको एलिजिबल आईटीसी और इनएलिजिबल आईटीसी दोनों का सेपरेट आपको ट्रैक रखना है, कि अगर आपने लेट से कोई ब्लॉक क्रेडिट लिया, कोई ऐसा आईटीसी का इनवॉइस आया जो एलिजिबल नहीं है, तब भी आपको आईएसडी से वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और आप ब्रांच रिस्पेक्टिव ब्रांच ऑफिस में उसको इनएलिजिबल रिपोर्ट करेंगे, और वो सेपरेट आपको इनएलिजिबल आईटीसी का सेपरेट इनवॉइस और एलिजिबल आईटीसी का सेपरेट इनवॉइस। तो ये मतलब 3-4 इंपॉर्टेंट कंप्लायंस के प्रोविजंस हैं जो आईएसडी में हमें फॉलो करने हैं। तो आई थिंक आईएसडी में मोर और लेस यही आता है। बाकी तो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग आईएसडी प्रैक्टिकली, देन यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल चैलेंज, बट देन दोज चैलेंजेस हैव टू बी सीन ऑन अ केस टू केस बेसिस, कि वो हर केस टू केस अलग अलग टाइप का ट्रीटमेंट फॉलो होगा अलग अलग टाइप के इशूज के लिए। दिस इज जस्ट अ वेरी वेरी ब्रीफ ओवरव्यू कि जो ये आईएसडी वर्सेस क्रॉस चार्ज, आरसीएम पेमेंट्स, टर्नओवर कैलकुलेशन, इन सब में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं प्रैक्टिकली, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं जो कंपनीज पहले से फॉलो कर रही हैं। वी हैव सीन जो कंपनीज 3-4-5 साल से फॉलो कर रही हैं, दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम स्पेशली इन द इनिशियल फेज। तो अब सब बिजनेसेस के मैंडेटरी हो गया, तो इंडस्ट्री एट लार्ज इज गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, स्पेशली इन स्टार्टिंग 3-4 months. So let's see how it goes. We have to try our best to give our best services to the clients, but this is something which is going to practically, which is going to create a lot of problem at least for next 3-4-5 months. So we have to be very very proactive, and we have to keep a very good channel for vendor coordination, क्योंकि इसमें आपको वेंडर से भी जीएसटी नंबर अपना चेंज कराना है, तो वेंडर के साथ कोऑर्डिनेशन, रियल टाइम कोऑर्डिनेशन रखना बहुत जरूरी है। आपको उसको जीएसटी नंबर भी बताना पड़ेगा, अगर उसने गलत जीएसटी नंबर पे दे दिया तो आपको उससे कोऑर्डिनेट करके जीएसटी नंबर अमेंड कराना है, अपने बुक्स में उसको ठीक करना है, तो सारी एक्टिविटी रियल टाइम में चल रही होगी। तो आई थिंक विद दिस वी कैन conclude the discussion part of our session. I think a lot of participants have sent their queries also in the chat box. तो आई थिंक ये टॉपिक भी थोड़ा ऐसा है कि जिसपे क्वेश्चन आंसर से ज्यादा, कंटेंट से ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सुमित जी, आई थिंक वी कैन टेक अप द क्वेश्चंस नाउ। यस मोहित जी, आई थिंक कंप्लीटेड ना। मैं ये सर, ये अच्छा, सर। सॉरी। यस, मोहित जी शुरू करें। हाँ सर। क्विकली कवर कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी 6:30 होने जा रहे हैं। वी हैव टू क्लोज। Question number one. If a company operate under the same pen but hold multiple GST registration for different units, is it mandatory for all unit to obtain ISD, or is ISD registration required only for those unit having common services? तो सर, जहाँ पे सिर्फ कॉमन सर्विसेज है, ओनली दोज यूनिट्स नीड टू हैव आईएचसी रजिस्ट्रेशन। Right. Let us say question two. Company having different units places like ABCD in India, and it IT department is based located in A. All IT expense incurred for all units like SAP license, Microsoft Offices, CRM software license are expense out in place A। वो तो फॉर एग्जांपल था आई थिंक ए यूनिट पर जहां पर आईटी सर्विसेज यूज होती हैं, तो उसका बिल की बात कर रहे हैं।
हाँ सर, तो जो उस टाइम हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, तो अगर लोकेशन ए पे वो आईटी रिलेटेड हम्म। एक्सपेंसेस कर रहे हैं और हम्म। वहाँ आईटीसी अवेल कर रहे हैं, तो वहाँ उन्हें आईएसडी नंबर लेके आईएसडी नंबर पे आईटीसी लेना पड़ेगा, एंड दे विल डिस्ट्रीब्यूट द आईटीसी टू ऑल द लोकेशंस Right. थ्रू इंडिया। If there are no services in common for branch or and HO, then also it mandatory to take ISD registration. नो, Then टेक्निकली स्पीकिंग उस केस में रिक्वायरमेंट नहीं है, बट नो प्रैक्टिकली इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, आपकी स्टैट ऑडिट की सर्विस है। सो स्टैट ऑडिट की सर्विस इज परटेन्स टू कंपनी एज अ होल। hmm, तो वो एचओ में भी कंज्यूम हो रही है, वो ब्रांच में भी कंज्यूम हो रही है। तो वो तो कोई भी कंपनी है उसके पास स्टैट ऑडिट का तो काम होगा ही होगा, स्टैट ऑडिट तो उसे कराना ही है। तो प्रैक्टिकली इट विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल केसेस जहाँ पे कोई कॉमन सर्विस नहीं होगी। right. Two registrations, one in Delhi and one in UP under same pen. Both are running separately. Each it ISD or cross charge. हमारे डिस्कशन का कंक्लूजन यही है कि अभी किसी को ही नहीं पता। आईएएस भी तो करना ही करना है, अब वो तो 1 अप्रैल से मैंडेटरी हो गया है। Hmm. क्रॉस चार्ज भी करना है या नहीं करना, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो जो आपके कॉमन एक्सपेंसेस है उसके लिए तो आईएसडी होगा, बट कोई एक स्टेट में आपके एक्सपेंसेस कंज्यूम हो रहे हैं कि एक स्टेट में कॉमन टीम बैठी है, तो ऑफिस का रेंट, मेंटेनेंस, उन सब के लिए क्रॉस चार्ज की रिक्वायरमेंट आ सकती है। Yeah. Director remuneration come under RCM. सर डायरेक्टर की सैलरी इज आउटसाइड जीएसटी, बट अपार्ट फ्रॉम सैलरी इफ यू आर पेइंग एनीथिंग, तो अगर आप जैसे उनको सिटिंग फीस देते हैं और कोई अमाउंट देते हैं डायरेक्टर्स को, दैट इज अंडर आरसीएम। Okay. What difference will it make if a firm has more than one offices having GSTN, making sales and purchase from both offices? How will the ISD shall be applicable and how the cross charge shall take place? तो आईएसडी के लिए यू हैव टू सेलेक्ट वन स्टेट। मतलब जो प्रैक्टिकली हाउ इट विल वर्क इज, आपको आईएसडी के लिए एक स्टेट जहाँ टिपिकली आपका हेड ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस है, उस स्टेट में आपको आईएसडी नंबर देना पड़ेगा, एंड वट एवर कॉमन सर्विसेज यू आर रिसीविंग, बी इट सॉफ्टवेयर, ऑडिट सर्विसेज, अकाउंटिंग, एनी काइंड ऑफ कॉमन सर्विस, Mm. तो उसके लिए आप वो आईएसडी का जीएसटी नंबर दीजिए अपने वेंडर को। दे विल आईएसडी यूनिट विल रिसीव द टैक्स इनवॉइस, एंड देन दे विल डिस्ट्रीब्यूट द आईटीसी टू बोथ द टैक्स, बोथ द जीएसटी नंबर। सो अपने स्टेट वाले जीएसटी नंबर को भी, दूसरे स्टेट वाले जीएसटी नंबर को भी, और जो Okay. क्रॉस चार्ट वाली सर्विस है उसके लिए क्रॉस चार्ट वाला इनवॉइस रेज होगा। Hmm. Sir, GSTR 6 due date is 13th. 2B generates on 14th. How we will take ITC, sir? ठीक है, 13 को आप जीएसटी 6 फाइल कीजिए, 2 में 14 को आ जाएगा, आप आईटीसी ले लीजिए। ISD return filing would be monthly, including nil return. यस, आईएसडी रिटर्न आपको जीएसटी 6 फाइल करना है, विच शैल बी फाइल्ड ऑन अ मंथली बेसिस। Okay. So I think with this, all query has been answered, and wonderfully you have covered the topic. Any other query by the participant? Otherwise, quickly we will wrap up. And Moiji, thank you so much for your wonderful deliberation and sparing your valuable time with us on this last day of the financial year. So last query लेते हैं, ISD is mandatory where ITC is availed, Yes sir, ISD is only mandatory if ITC is available. If you're not availing ITC, then not ये required. अच्छा सोल्यूशन है, आप आईटीसी मत लो। Okay, right. So with this, thanks to all participants who have joined in today's session and discuss this topic in this closed group meeting. Thank you very much to all, and thank you, Moiji, for your precious time. Thanks to all. Thank you. Best thanks should be to Sumit ji and Kasa and Asha ji to Thank you. organize this meeting, इसीलिए हम सारे लोग साथ में आ पाए हैं। Right. तो biggest thanks to you sir। Thank you so much. Now it's time to close the meeting. Thank you.